Assalamu alaikum ji. We were talking about burnout. We were talking about exercise psychology. We were talking about sports psychology, and we had seen the connection between sports performance, exercise, leading to, in some cases, the problem of burnout. Today we are going to look at, in this lecture, we are going to take a look at the relationship of sports, exercise, burnout, leading to injuries. The psychological reasons, the psychology of athletic or sports-related injuries. That is what we are going to look at today. अभी तो आप ये समझते रहे हैं कि शायद इंजरीज जो हैं वो एक्सीडेंटल होती हैं. एक गुजारिश करूं आपसे कि इंजरीज आर कॉज्ड, इवन एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड. There are factors that lead to accidents, and there are factors that lead to injuries. And if sports psychologists could look at those factors that cause accidents or cause injuries, then they would be in a better position to remove those causes. And then, as a result of removal of those causes, they'd be in a better position to keep their athletes, sports persons, injury-free. An injury-free athlete is a top-level performing athlete. An injury-free player, an injury-free swimmer, an injury-free gymnast, bowler, wicket-keeper, goalkeeper, forward in hockey, winger in hockey, forward in football, all of these people, if they are injury-free, they would give their performance at the top of their potential. And that is why sports psychologists are studying the psychology of injury also, particularly related to sports. और आज हम उसी का एक जायजा लेंगे. इससे पहले कि हम उसका जिक्र करें, पहले जल्दी से रिव्यू करते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 43 में आपसे क्या गुजारिशात की थी, ताकि आपके जहन में वो बात आ जाए और फिर आप उसको कनेक्ट कर सकें आज की बातचीत के साथ. पिछली मर्तबे हमने आपसे कहा था बर्नआउट क्या है. इफ वी रिव्यू लेक्चर नंबर 43, वी टॉक्ड अबाउट बर्नआउट, एंड इन रिलेशन टू बर्नआउट वी टॉक्ड अबाउट अदर टर्म्स separated from, distinguished from burnout. And what were those terms? Burnout expresses itself in certain physiological and psychological symptoms. Exhaustion. Physical symptoms उसके burnout के होते हैं. हमने फिर आपको इसको distinguish किया था burnout का, excessive exercise का, from overtraining and overreaching. Then we talked about staleness, separated from overreaching, overtraining, and burnout. And then we talked about withdrawal. कि burnout की वजह से, overtraining की वजह से, overreaching की वजह से, stillness की वजह से, ये जो एक शख्स है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से withdraw कर सकता है. Imagine the best goalkeeper in hockey or football. He gets burnt out and he withdraws. What a shock it would be to the team as a whole. इसलिए हमने बर्नआउट और विड्रॉल का ताल्लुक भी देखा था. फिर हमने देखा था मॉडल्स ऑफ बर्नआउट.
हमने आपको बताया था कि मॉडल्स क्या होते हैं, ये मफरूज़े हैं, लेकिन मफरूज़े जो हैं ये किसी की अपनी सोच की इख्तरा नहीं है, बल्कि ये मफरूज़े भी बेस्ड अपॉन सॉलिड ग्राउंडिंग्स हैं। अभी तक इसलिए मफरूज़ा कह रहे हैं माहिरीन नफ्सियात ने, क्योंकि इन ख्यालात की फेवर में 100% श्योरिटी हमें अवेलेबल नहीं है, जो सोशल साइंसेज में वैसे ही मुश्किल है। इसलिए हम इनको मॉडल्स कहते हैं, और हमने वो उन मॉडल्स का एक मुशाहिदा किया था। क्या देखा हमने उन मॉडल्स में कि 3 किस्म की एक्सप्लेनेशंस हमें अवेलेबल हैं बर्नआउट की। क्या? स्ट्रेस मॉडल्स ऑफ बर्नआउट, दैट games or sports input is stressful and that stress leads to burnout. Then we talked about investment model of burnout, that burnout happens because a person who's an athlete or a sports person feels that he does not get as much pleasure or as much benefit out of his sports activity as compared to the input that he's giving in to the sports, and that is the investment model of burnout. Then we talked about the empowerment model of burnout, that a person feels that he has lost control over his life, and that is why he is stressed, and that leads to his burnout. हमने ये 3 मॉडल बर्नआउट के देखे थे। फिर उसके बाद हमने आपसे गुजारिश की थी कि बर्नआउट के सिम्टम्स क्या क्या हैं, और उसमें हमने आपको 12, 14, 15 के करीब सिम्टम्स का जिक्र किया था। उनकी 2 कैटेगरीज बनाई थी हमने। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में हमने आपको बताया था रेज्ड ब्लड प्रेशर, रेज्ड हार्ट बीट। हमने आपको बताया था लॉस ऑफ स्लीप। इस किस्म के सिम्टम्स जो हैं ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं बर्नआउट के। फिर हमने साइकोलॉजिकल सिम्टम्स का जिक्र किया था, इरिटेबिलिटी, सिनिसिज्म, और आखिर में हमने आपको बताया था कि माहिरीन नफ्सियात क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर एक एथलीट या एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो बर्नआउट का शिकार है तो उसको क्या करना चाहिए। और इसकी हमने 3 लेवल्स की आपको एक्सप्लेनेशंस दी थी। नंबर 1, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एथलीट और द प्लेयर और द स्पोर्ट्स पर्सन, उसको क्या क्या करना चाहिए। टेक टाइम ऑफ, रिलैक्स। फिर हमने आपको बताया था कि कोचेज या मैनेजमेंट से मुतल्लिक जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। हमने आपको इस रेफरेंस में बताया था कि इंटरैक्शन को, इंटरपर्सनल कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए, ताकि एथलीट्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को, स्ट्रेस को कोचेज से, मैनेजमेंट के लोगों से शेयर कर सकें। ये दूसरा तरीका था रिलेटेड टू कोचेज एंड मैनेजमेंट। और तीसरी रिकमेंडेशन जो बताई थी सेट, वो क्या था, जिसका ताल्लुक था पेरेंट्स से या सिग्निफिकेंट अदर्स से, कि वालदैन जो हैं या सिग्निफिकेंट अदर्स जो हैं, बीवी या खामिन जो हैं, वो ज्यादा पुश ना करें, जरूरत से ज्यादा नहीं। जरूरत से ज्यादा विनिंग पे जोर न दें, जरूर जोर दें विनिंग पर, जरूर पुश करें। पुश के बगैर और विनिंग की थर्स्ट और हंगर के बगैर एथलीट ना तो जीत सकते हैं ना कामयाब हो सकते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन parents and significant others must see when to back off, when it should be stopped, when the pushing becomes over pushing, and when the stress on winning becomes an over stress on winning. तो हमने ये बताया था पेरेंट्स और सिग्निफिकेंट अदर्स से मुतल्लिक, और ये 3 लोगों के लिए रिकमेंडेशंस थी कि इस तरह से बर्नआउट से हम एथलीट्स को बचा सकते हैं। और अगर कोई एथलीट बर्नआउट का शिकार है तो उसको हम उससे बर्नआउट से निकाल सकते हैं। हमसे मेरी मुराद स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। चलिए अब इससे आगे चलते हैं और आज के लेक्चर पे एक नजर डालते हैं। दैट रिलेट्स टू द साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक इंजरीज। देखिए, जहां गेम्स होंगी, एथलेटिक्स हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, कबड्डी हो, जूडो हो, जूजित्सु हो, कराटे हो, कोई भी जहां वर्जिश होगी, जहां जो भी ओलंपिक गेम्स हैं उनमें से जो रिलेटेड गेम्स में कोई भी अगर आप किसी चीज में मुब्तला हैं तो इंजरीज तो स्पोर्ट्स का हिस्सा हैं।
इंजरीज तो ज़रूर होंगी, इसलिए ये समझना कि हमें स्पोर्ट्स में इंजरी के बगैर कोई स्पोर्ट्स पर्सन मिल जाएगा या एथलीट मिल जाएगा, ऐसा नामुमकिन है। इसलिए माहिरीन नफ्सियात ये समझते हैं कि उन्हें साइकोलॉजी ऑफ इंजरी की बहुत डिटेल्ड स्टडी करनी चाहिए, और यही वजह है कि क्योंकि इंजरी स्पोर्ट्स का हिस्सा है और इस बिना पर एक शख्स के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल क्राइसिस हो सकता है, इसलिए इस इंजरी को समझना, इसको प्रिवेंट करना, अगर इंजरी हो जाए तो उससे निजात जल्दी से जल्दी हासिल करना, रिहेबिलिटेट करना, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक इंजरी से रिलेटेड हैं। चलिए इसका एक मुशाहिदा करते हैं। देखें, फिजिकल फैक्टर्स, एक शख्स जिस तरह का बना हुआ है वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ओवर ट्रेनिंग इज ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन इंजरी। इक्विपमेंट फेलियर इज ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन इंजरी इन स्पोर्ट्स। बैडमिंटन का आप शॉट लगा रहे हैं, रैकेट आपका टूट गया, आपने बढ़ के आगे शॉट लगाने की कोशिश की, आपका जूते से फर्श से पांव फिसल गया क्योंकि फर्श स्लिपरी था। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विपमेंट फेलियर, और इसकी वजह से इंजरी हुई। पुअर प्लेइंग कंडीशन इज अनदर फैक्टर। ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं ये किसी भी जगह पे इंजरी का पेश खैमा बन सकते हैं, और इनकी वजह से इंजरी जो है वो हो सकती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 4 factors which contribute to athletic injury. Physical factors, overtraining, equipment failure, poor playing conditions. कुछ psychological factors भी हैं। ये जो सारे factors का हमने जिक्र किया, ये material factors समझ लीजिए, non-psychological factors समझ लीजिए, physical factors समझ लीजिए। इसके अलावा psychological factors भी हैं जो इंजरी का पेश खैमा हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उनका एक डिटेल से मुशाहिदा करते हैं। हमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ इंजरी को देखने के लिए 3 चीजों का मुशाहिदा करना होगा। वी नीड टू लुक एट 3 मेन टॉपिक्स इफ वी आर गोइंग टू टेक ए लुक एट साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक इंजरीज। And what are those 3 main sections that we are going to look at now? Number 1, the psychological predictors of athletic injuries. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम पेशगोई कर सकते हैं कि ये फैक्टर्स जो हैं ये जब मौजूद होंगे तो इंजरी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। पहला हमें एक सेक्शन ये देखना है। दूसरा सेक्शन जो है इससे मुतल्लिक साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक इंजरी, दैट रिलेट्स टू एथलीट्स रिस्पॉन्स टू इंजरी एंड द रिहेबिलिटेशन रेजिमेन, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। वो भी साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक इंजरी का एक अहम हिस्सा है। और तीसरी चीज जो हमें इस रेफरेंस में देखनी है साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक इंजरी से मुतल्लिक, दैट इज सम अदर कंसिडरेशन सच एज मॉडरेटिंग फैक्टर्स इन इंजरीज। चलिए एक एक करके आगे चलते हैं। लेट अस टेक ए लुक फर्स्ट एट साइकोलॉजिकल प्रिडिक्टर्स ऑफ एथलेटिक इंजरी। साइकोलॉजिकल प्रिडिक्टर्स ऑफ एथलेटिक इंजरी से मुराद क्या है? वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से अनासिर हैं जो अगर एक शख्स में या उसके गिरदो नवाह में मौजूद हों तो उसको इंजरी होने का ज्यादा खतरा दरपेश होगा। ये दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट अंडर दिस मेन हेडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिडिक्टर्स ऑफ एथलेटिक इंजरी। देखिए 4 फैक्टर्स का इसमें जिक्र करना जो है वो मैं जरूरी समझता हूं। इफ वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट हु इज गोइंग टू बी इंजर्ड, वी need to look at 4 factors that contribute to injury and on the basis of which we can predict
हम पेशगोई कर सकते हैं नफ्सियात के तालिब इल्म की हैसियत से कि अगर ये 4 फैक्टर्स मौजूद हों तो फिर इंजरी जो है उसके होने का एहतमाल या कम होने का एहतमाल बढ़ जाता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1, पर्सनैलिटी ऑफ द एथलीट। हम डिटेल से इसके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल ये देखिए वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, पर्सनैलिटी ऑफ द एथलीट। नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेसर्स। एक शख्स की जो ज़ात है, जो शख्सियत है, उसका उसकी इंजरी के साथ गहरा ताल्लुक है। कुछ लोग माहिरीन नफ्सियात ने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में देखा था, हमने आपसे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में भी इसका जिक्र किया था। कुछ लोग ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हादसात ज्यादा पेश आते हैं। आपने सड़क पे मुलाहजा किया होगा, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनको ज्यादा टक्करें लगी हैं, कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो ज्यादा गाड़ी की टक्कर में मौजूद होते हैं, का हिस्सा होते हैं, चाहे वो मामूली नौइयत की टक्कर हो, लेकिन crashes and skirmishes in cars is a part of some drivers and is not a part of certain other drivers. Psychologists in industries have seen that there are some workers, there are some supervisors, there are some managers who are more prone to accidents, and this is what we are talking about in relation to psychology of athletic injury, in relation to sports psychology, that there are personality factors of the athlete related to the athlete that predispose him to having more and more injuries as compared to certain other athletes. मिसाल यूं ले लीजिए कि 2 फास्ट बॉलर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मिसाल ले लीजिए, 2 फास्ट बॉलर हैं, उनमें से एक जो है वो ज्यादा इंजरी का शिकार है और एक जो है वो कम इंजरी का शिकार है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड the reason of personality of the athlete as a part, as a factor in athletic injury. दूसरा फैक्टर जो है वो है हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेसर्स, कि वो उस एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन की क्या हिस्ट्री है स्ट्रेस लेने की और स्ट्रेस की रिस्पॉन्स की। दैट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल प्रिडिक्टर ऑफ इंजरी। तीसरा फैक्टर जो है कोपिंग रिसोर्सेज उसके क्या हैं, वो इंजर अगर हो जाता है तो वो इंजरी से कैसे कोप करता है, ये तीसरा फैक्टर है साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक इंजरी में। चौथा फैक्टर है पोटेंशियल ऑफ इंटरवेंशंस, कि इंटरवेंशन इंजरी को अवॉइड करने की या इंजरी से निजात हासिल करने की या इंजरी को बेहतर करने की इंटरवेंशन जो है वो किस हद तक उसके पास मौजूद है और वो किस हद तक उन पे अमल करता है। That is also part of psychological predictor of athletic injury. अगर आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हों तो आपको दिखाई दे रहा होगा kind of an equation, and it is stressful athletic situation leading to cognitive appraisals of the situation, cognitive appraisal and stressful athletic situation related to physiological and attentional changes, यानी stressful situation, cognitive appraisal of that stressful situation influences attentional changes, gets influenced by attentional changes. It's a two-way process, and this then leads to injury. इस तरह से इंजरी जो है वो एक शख्स एथलीट में हो सकती है। माहिरीन नफ्सियात ने ये एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया है जिसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। अभी हमने आपको बताया था कि साइकोलॉजिकल प्रिडिक्टर ऑफ इंजरी में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। पर्सनैलिटी ऑफ द एथलीट, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेसर, कोपिंग एंड इंटरवेंशन। चलिए अब शुरू इनको डिटेल से मुलाहजा करते हैं। पर्सनैलिटी फैक्टर्स, कौन कौन से पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं जो इंजरी से रिलेटेड हैं, आइदर नेगेटिवली और पॉजिटिवली।
कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अगर ज्यादा हों तो इंजरी ज्यादा होगी और अगर कम हो तो इंजरी कम होगी? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि अगर वो ज्यादा हों तो इंजरी कम होगी और अगर वैसे फैक्टर्स कम हों तो इंजरी ज्यादा होगी? ये दिस इज व्हाट इज मेंट बाय पर्सनैलिटी फैक्टर्स एंड रिलेशनशिप ऑफ पर्सनैलिटी फैक्टर्स विद इंजरी. पहला फैक्टर इसमें है हार्डीनेस. हार्डीनेस इज दैट सम पीपल आर मोर टफ माइंडेड. जैसे कहते हैं ना, tough minded. They do not bother if small pains and aches take place in their body. They have a tough mental attitude. They feel they have a higher level of self-efficacy. They have a higher level of self-confidence. They have a higher level of positive self-talk available to them. These are all descriptions of people who have a hardy nature, and this is one personality factor. The hardier the nature, the lesser the probability of injury. दूसरा, locus of control. याद आया आपको locus of control क्या है? Those people who consider that they themselves are responsible for their life situation are people who have internal locus of control. याद आया आपको? हमने आपसे इस बारे में काफी दफा बात की है. And those people who feel that external factors control them, are responsible for their life situations, are called people who have external locus of control. हमने आपको बताया था, पॉजिटिव साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी, उसमें भी आपको पता चला होगा कि वो लोग जो जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, दे आर लेस प्रोन टू इमेजरी. और वो लोग जो ऑप्टिमिस्ट्स हैं, आपने साइकोलॉजी ऑफ आपने पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, दे आर लेस प्रोन टू इमेजरी एंड इवन व्हेन दे आर इंजर्ड दे रिकवर क्विकली फ्रॉम इंजरी. आपको याद है हमने आपसे जिक्र किया था एक रिसर्च का जिसमें यह देखा गया था कि वो लोग जो खुदा ना खास्ता कैंसर जैसी मोहलक बीमारियों से भी मुब्तला हैं, इफ दे have a positive attitude, if they are optimistic, if they develop a hardy attitude, if they show this trait of hardiness, they then have a greater probability of living longer in spite of their terminal disease of cancer than those people who do not show these traits. So we know that personality factor of positive thinking, of optimism, of hardiness are all factors that are negatively related to disease and therefore also negatively related to injury. इसी में हमने एक और बात का जिक्र जो आपसे करना है, दैट रिलेट्स टू कॉम्पिटिटिव ट्रेट एंजाइटी. वो लोग जिनमें एंजाइटी ज्यादा हो, आपके ख्याल में क्या ख्याल है, वो ज्यादा इंजरी प्रोन होंगे या कम इंजरी प्रोन होंगे? यू आर राइट, ए हायर लेवल ऑफ ट्रेट एंजाइटी इज रिलेटेड विद ए हायर लेवल ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. ये कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं. इसके बाद हमने देखना है हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेसर्स. स्ट्रेसर्स क्या हैं? एक शख्स अपनी जिंदगी में किस हद तक स्ट्रेसेस का शिकार है. साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक और स्पोर्ट्स इंजरी इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेसर्स ऑल्सो. इसमें 3 चीजें देखने वाली हैं. एक शख्स जो स्ट्रेसफुल लाइफ और डेली हैसल्स में ज्यादा मुब्तला है, जिसको लाइफ स्ट्रेस ज्यादा है, जिसकी जिंदगी में डेली हैसल्स ज्यादा हैं, लाइफ स्ट्रेसर्स और डेली हैसल्स जो हैं,
they predispose a person to injury, and that is applicable to sports injury also. Somebody whose life is stressed, बच्चों को पिक करना है, गाड़ी का टायर चेंज करना है, बिजली का बिल अदा करना है, टेलीफोन कट रहा है उसका ख्याल करना है, घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो देखना है, एथलेटिक इक्विपमेंट जो है उसमें से कोई चीज कम हो गई है, जॉगर जो है उसको नया लेना है, वो कहाँ से लिया जाएगा, बॉक्सिंग ग्लव्स जो हैं वो लेने हैं. ये तमाम चीजें जो हैं ये डेली हैसल्स हैं, और ये डेली हैसल्स जो हैं जिसको ज्यादा दरपेश हैं उसकी लाइफ ज्यादा स्ट्रेसफुल है, इसलिए ही और शी इज मोर प्रोन टू इंजरी. तो हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेसर में ये अहम बात है. दूसरी अहम बात जो है वो है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इंजरी. अगर एक शख्स पहले इंजर होता रहा है और वो ये समझता है कि वो अब भी इंजर हो जाएगा, तो दैट थॉट इन इटसेल्फ एंड हिज हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इंजरी इज ए predisposition for him, is a factor which predisposes him to receive injury now. His previous history of injury, therefore, is an important factor in determining his injury. ये है history of stressors related to injury. तीसरी चीज जो हमने आपको बताई थी इंजरी की प्रिडिक्शन से मुतल्लिक, that relates to coping resources. कोपिंग रिसोर्सेज मीन्स कि इंजरी के साथ कोप करने के लिए उसके पास कौन कौन से जराए मौजूद हैं. वो क्या है? कोपिंग बिहेवियर. इफ हिज कोपिंग बिहेवियर इज सच दैट इट हेल्प्स टू रिड्यूस द ऑनसेट ऑफ इंजरी, इफ हिज कोपिंग बिहेवियर इज सच that it helps him to get out of the injured situation quickly, then we can predict that his injury would be less in the future. Another factor within the coping resources, apart from his coping behavior, is the availability or non-availability of social support. कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दोस्त, वालिदैन, टीममेट्स, क्लब के दूसरे बंदे जो हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं. उन लोगों में स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी कम है. वो लोग जिनको ये सपोर्ट ग्रुप्स अवेलेबल नहीं है, सोशल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, उनमें इंजरी ज्यादा है. इससे मुतल्लिक जो एक और चीज देखने वाली है, दैट रिलेट्स टू स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे. अगर एक शख्स को मालूम है, उसको अंदाजा है कि अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, अगर वो जानता है और जानती है कि स्ट्रेस होना जो है वो जिंदगी का हिस्सा है, स्पोर्ट्स का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ उसको ये भी पता है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना चाहिए. या एक शख्स ऐसा है जो ये तो जानता है कि स्ट्रेस आता है, लेकिन उसके पास स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स मौजूद नहीं है. हमारे बहुत से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर और बैट्समैन ऐसे हैं जो इस बात से नावाकिफ हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए. बजाय इसके कि वो स्ट्रेस को मैनेज करें, वो ऐसा बिहेवियर और ऐसी थॉट्स अपनाते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो घटने की बजाय बढ़ता है. उस सूरत में जाहिर है कि इंजरी का इम्कान भी बढ़ जाएगा. तो एक फैक्टर अहम जो है वो ये भी है कि एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन को स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से आगाही है या नहीं है, और अगर आगाही है तो क्या वो स्ट्रेस मैनेजमेंट को की टेक्निक्स को अपने पे अप्लाई करता है या नहीं करता. अगर उसको इस बात की आगाही है तो इंजरी कम होगी, अगर आगाही नहीं है तो इंजरी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. मिसाल के तौर पर वो जानता है कि रात देर तक जागने से इंजरी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, अवेयरनेस है, बट ही कंटिन्यूज टू गो क्लबिंग.
but he continues to watch television, but he continues to sit with friends for gupshup and does not get enough rest and enough sleep, does not relax, and that would predispose him to injury. And that is what we mean by contributing factor in predicting the psychology of injury, that is awareness and application of stress management techniques. एक और factor जो इसमें related है, that is attentional strategies. We have seen that dissociative strategy of running is associated with less incidence of injury. वो लोग जो dissociative strategy को अपनाते हैं, वो उनमें इंजरी की probability कम है. और एक और बात जो देखने वाली है, that is related to medication. Apart from attentional strategy, if the attention is too much focused on injury, then of course the probability of injury would be increased. If the attention is not at all focused on injury, then of course the probability of injury would also increase. तो जहां attentional strategy का इंजरी के साथ ताल्लुक है, वहां मेडिकेशन का भी इंजरी के साथ एक गहरा और अहम ताल्लुक है. There are certain drugs that can influence the stress level and thus affect the probability of injury. Drugs that may increase stress will lead to increased probability of injury in sports persons. और आखिरी बात जो इससे मुतल्लिक हमने आपको बतानी है, that relates to the intervention. We talked about 4 factors that were related to injuries, and the 4th of them is intervention. The kind and the nature of intervention that the person, the sports person adopts is related to injury. For instance, a change in his cognitive appraisal towards injury helps to curtail his probability of injury. इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा. अगर एक शख्स अपना एटीट्यूड, अपना सेल्फ टॉक टुवर्ड्स इंजरी चेंज करे, तो क्या ख्याल है? Will injury be affected or not affected? If, for instance, he indulges in positive self-talk, he says to himself, I will play in the proper manner and I will not get injured. On the other hand, a person indulges in negative self-talk. Negative self-talk example might be, if I don't pay close attention to where I'm going and running, I will fall down and get injured. इन दोनों एथलीट्स में, इन दोनों स्पोर्ट्स पर्सन्स में आपके ख्याल में किसको इंजरी ज्यादा होने का एहतमाल है? Obviously the second one, because he is indulging in a cognitive thinking approach which predisposes him to injury, and the other one is indulging in a cognitive approach which helps him to avoid injury. ये है intervention. If the athlete, the sports person himself adopts a cognitive approach, he would then be able to curtail injury. If he adopts a negative cognitive approach, he is more predisposed to injury. So, cognitive approach, जो हम समझते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे ख्यालात हैं, वो भी हमारी इंजरी में एक अहम हिस्सा है. ये इंटरवेंशन का एक हिस्सा है. इंटरवेंशन का दूसरा हिस्सा क्या है? We know that attentional focus leads to better performance. याद आया आपको? अगर हम दूसरे स्टिमुलेशंस जो हैं उनको अपने अटेंशन के फोकस से बाहर रखें और अपने अटेंशन को फोकस्ड रखें अपने एक्टिविटीज और गोल की तरफ,
तो हम एथलीट की हैसियत से बेहतर परफॉर्म करते हैं। यही बात इंजरीज पर भी लागू है। इफ ए पर्सन adopts an attentional approach which makes him focus his attention on performing well, then he would avoid injury. If he lets the attention be diverted, the probability of his getting injured is increased. And that is what is meant by intervention as the fourth variable in predicting injury related to sports. इससे आगे जो देखने वाली बात है वो है कि एक एथलीट जो है उसकी रिस्पॉन्स क्या है इंजरी की तरफ और उसकी रिस्पॉन्स क्या है रिहेबिलिटेशन की तरफ। हिज और हर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इंजरी एंड हिज और हर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स रिहेबिलिटेशन would determine how quickly or how late he or she recovers from the injury that he or she may have received. First, let's take a look at the response. In that context, we need to take a look at the cognitive appraisal as a response, the emotional response, and the behavioral response. First, the cognitive appraisal as a response to injury. एक शख्स को इंजरी हो गई है, physical injury, but physical injury is also related to a lack of self-esteem. उसकी self-esteem या self-worth भी इंजर हो जाती है. If the sports person separates his self-esteem, if the sports person separates his self-worth from the injury that he has received, then his response to injury is better. He would recover quicker as compared to someone who receives a physical injury but at the same time says that his self-esteem or feels that his self-esteem or self-worth has also been injured. That kind of an attitude, that kind of a cognitive appraisal increases the onset and the continuation of injury. तो cognitive appraisal का इंजरी के साथ गहरा ताल्लुक है. दूसरी बात जो देखने वाली है इस रेफरेंस में वो है इमोशनल रिस्पॉन्स. इफ ए पर्सन as a result of being injured develops a fear of the unknown, if he says or she says मुझे आज इंजरी हुई है, मुमकिन है आइंदा भी हो जाए और पता नहीं किस किस्म की इंजरी हो जाए, कितनी बड़ी हो जाए. That is an example of fear of the unknown. Fear of the unknown is a kind of a predisposition to injury. Feelings of anger, frustration, tension, depression, all of these are parts of the emotional response to injury which help to sustain, which help to predispose a person to be injured. Another, negative attitude related to injury. If a person develops a negative attitude, if he says, मुझे तो हमेशा ही चोट लग जाती है, अलिफ को या बे को या जीम को हमेशा ही चोट लग, वो हमेशा ठीक रहते हैं, मुझे चोट लग जाती है. This kind of an emotional response will lead to a greater probability of a person receiving injury, and once he has received or she has received injury, would take a longer time to recover from that injury. तीसरी चीज जो इससे मुतल्लिक देखने वाली है, that is the behavioral response to injury. Behavioral response भी है, जैसे हमारी सोच की रिस्पॉन्स है इंजरी से मुतल्लिक, जैसे हमारी जज्बात की रिस्पॉन्स है इंजरी से मुतल्लिक, इसी तरह हमारी बिहेवियरल रिस्पॉन्स या किरदार रिलेटेड रिस्पॉन्स भी है. किरदार से मुतल्लिक जो हमारा रद्द अमल है उसका भी अहम ताल्लुक है इंजरी के साथ. वो क्या है कि हम क्या इंजरी से, क्या जख्म से को ठीक करने के लिए कोई मुस्बत और मटीरियल कदम उठाते हैं या नहीं उठाते. एक शख्स को इंजरी हुई, उसने कहा खुद ही ठीक हो जाएगी. एक शख्स को इंजरी हुई, उसने डॉक्टर से राब्ता किया, उसने इंटरनेट पे बैठ के देखा कि इंजरी की क्या वजह है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, और वो डॉक्टर की एडवाइस और इंटरनेट से जो उसको इंफॉर्मेशन मिली उस पे अमल कर रहा है.
क्या ख्याल है आपका, कौन बेहतर इंजरी से ज्यादा, कौन इंजरी से जल्दी रिकवर करेगा? Obviously, some athlete who has contacted his physician and who has gathered information from books and the internet, his rehabilitation is better as compared to somebody who does not follow these things up. So his probability of recovering from injury is more. So rehabilitation is a better rehabilitation technology, rehabilitation adherence is an important ingredient of recovering from injury and not having the probability of being injured again or decreasing the probability of being injured again in the future. Rehabilitation में इसको अगर हम थोड़ी डिटेल देखें इसकी, तो इसमें 2 levels of factors हैं, पर्सनल फैक्टर्स और सिचुएशनल फैक्टर्स. पर्सनल फैक्टर्स कि क्या वो शख्स रिहेबिलिटेशन में अश्योरेंस है, क्या वो रिहेबिलिटेशन को स्टिक करता है या नहीं करता, और सिचुएशनल फैक्टर्स में कि क्या वो समझता है कि रिहेबिलिटेशन से उसको फायदा होगा, क्या रिहेबिलिटेशन की वजह से वो कंफर्ट महसूस कर रहा है, क्या रिहेबिलिटेशन उसके लिए कन्वीनियंट है. अगर ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं तो वो रिहेबिलिटेशन को अडॉप्ट करेगा और रिहेबिलिटेशन से मुतल्लिक स्ट्रैटेजीज अपनाए रखेगा. अगर ये फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं तो रिहेबिलिटेशन में एक रखना अंदाजी होगी जिसकी वजह से इंजरी से रिकवरी देर से होगी. इंजरी से मुतल्लिक एक और अहम चीज जो है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेन. पेन मैनेजमेंट and understanding of pain is an important variable related to injury. आपने वैसे हेल्थ साइकोलॉजी में ये यकीनन पढ़ा होगा, पेन टॉलरेंस इज ए पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक. कुछ लोगों का पेन थ्रेशोल्ड जो है वो लो है और कुछ लोगों का पेन थ्रेशोल्ड हाई है. इससे क्या मुराद, कुछ लोग पेन ज्यादा बर्दाश्त करते हैं और कुछ लोग पेन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. एक तो ये बात समझने वाली. दूसरी समझने वाली बात यह है कि पेन 2 किस्म की है इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स. हमने यहां 2 किस्म की पेन का जिक्र करना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड. नंबर 1 इज इंजरी पेन, वो दर्द जो जख्म की वजह से है, और दूसरी इज परफॉर्मेंस पेन, वो दर्द जो परफॉर्मेंस की वजह से होती है. फिर हमने जिक्र करना है यहां एक्यूट पेन और chronic पेन का. Acute pain is when the pain takes place as a result of trauma, hurt to the body. And chronic pain is a pain which is long lasting, which may not be a response to the trauma. तो इस पेन को समझना जो है वो एथलीट के लिए जरूरी है. क्या ये परफॉर्मेंस रिलेटेड पेन है या इंजरी रिलेटेड पेन है, क्या ये एक्यूट पेन है या chronic पेन है. अगर वो ये सारी बातें जानता है तो उसकी पेन मैनेजमेंट जो है वो बेहतर होगी, और अगर वो पेन मैनेजमेंट बेहतर करेगा तो इंजरी से जल्दी रिकवर करेगा. पेन को मैनेज करने के आमतौर पर 2 तरीके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स बताते हैं. कौन कौन सा? फार्माकोलॉजिकल, दैट इज रिडक्शन ऑफ पेन और मैनेजमेंट ऑफ पेन by drugs, and non-pharmacological approaches. Pharmacological approach है कि आप पेन किलर ले लें, ट्रैंकुलाइजर्स ले लें या कुछ ऐसी अद्वियात ले लें जिनकी वजह से पेन जो है वो कम हो जाए, मसल रिलैक्सेंट ले लें जिनकी वजह से पेन कम हो जाए. और नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस क्या है? रिलैक्सेशन, टेकिंग ए टाइम ऑफ. ये सारी स्ट्रेटजी हैं पेन से. अगर एथलीट पेन की बुनियादी बातों को समझ रहा है, अगर एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन अवेयर है फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस टू कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ पेन, देन हिज रिहेबिलिटेशन इज फैसिलिटेटेड. ये बात अहम जो है ये देखने वाली है. और आखिरी बात जो इससे मुतल्लिक है जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द अदर कंसिडरेशन रिलेटेड टू इंजरी एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. इंजरी और इंजरी से रिकवरी
और दो बातों से रिलेटेड है, और वो दो बातें क्या हैं कि जो मैनेजर्स हैं या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो एथलीट को या स्पोर्ट्स पर्सन को किस तरह से डील कर रहे हैं, वो उसकी इंजरी और इंजरी से रिहेबिलिटेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इसमें we know that there is the so-called distributed approach and there is the so-called specialist approach. Pain or injury can be managed under the distributed approach by the non-specialists, by a coach, by friends, by relatives who are not experts in management of injury. And the second consideration in this is the specialist's approach to injury. Somebody who is a specialist in sports psychology, somebody who is a specialist in medicine or surgery would be in a better position to understand and give advice related to psychological and physical rehabilitation of the person. These two factors contribute to the incidence of injury and the rehabilitation of a sports person from injury. और आखिरी बात जो इसमें देखने वाली है वो आपको शायद अजीब सी लगे लेकिन इंटरेस्टिंग है. The benefits associated with sustaining injury and recovering from injury in स्पोर्ट्स. अभी तक तो हम ये समझते रहे कि इंजरी जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत बुरी चीज है, उसका सेल्फ वर्थ डैमेज है, वो खेलने के काबिल नहीं रहता, उस कॉन्फिडेंस लैक करता है, उसकी परफॉर्मेंस पे नेगेटिव असर पड़ता है. एज ए फंक्शन ऑफ ऑल ऑफ दैट ही सफर्स फ्रॉम ए फाइनेंशियल लॉस. लेकिन क्या इंजरी के कोई बेनिफिट्स भी हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट बात है. जी हां, इंजरी के बेनिफिट्स भी हो सकते हैं. माहिरीन नफ्सियात ये समझते हैं कि इंजरी के बहुत से बेनिफिट्स भी हो सकते हैं. क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? इंजरी के बाद एक शख्स पहले से ज्यादा मैच्योर हो सकता है, उसकी पर्सनल साइकोलॉजिकल इंसाइट बढ़ सकती है. वो समझ जाता है कि इस बिना पे, इन फैक्टर्स की बिना पे, इस सोच की बिना पे उसको इंजरी दरपेश हुई है. वो पहले से ज्यादा मैच्योर है, उसमें हार्डीनेस ज्यादा आ सकती है, वो पहले से ज्यादा टफ माइंडेड हो सकता है, वो पहले से ज्यादा उसकी सेल्फ एफिकेसी जो है वो इंक्रीज हो सकती है, वो पहले से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकता है, वो पहले से ज्यादा इंजरी से रिकवरी में एक्सपर्टीज हासिल कर सकता है. उसको पता है कि अगर इंजरी हो जाए तो उससे जल्द कैसे निजात हासिल करनी है. ये तमाम बेनिफिट्स भी हैं. गो के बेनिफिट्स जाहिर है इंजरी के जो नुकसानात हैं उसके मुकाबले में बेनिफिट्स कम हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं. मैच्योरिटी, increase in self-efficacy, increase in mental toughness, increase in personal motivation, increase in the experience of recovery from injury. All of these are benefits that the athlete derives from being injured in sports. तो सिर्फ ये समझना कि इंजरी की वजह से एक शख्स को नुकसानात ही होंगे, ये दुरुस्त नहीं है. Before we end today, let us take a look at what we talked about. We talked about some of the psychological predictors. किन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक शख्स को इंजरी होगी, और उसमें हमने 4 फैक्टर्स का मुशाहिदा किया था. पर्सनल फैक्टर्स, पर्सनालिटी रिलेटेड फैक्टर्स, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेसर्स, कोपिंग रिसोर्सेज अवेलेबल टू हिम एंड इंटरवेंशन. फिर हमने ये देखा कि एथलीट्स रिस्पॉन्स टू इंजरी and rehabilitation. What is the athlete's response? We saw that there are 2 ways in which the athlete may respond to injury so far as psychological response is concerned: the cognitive appraisal and emotional appraisal. Then we took a look at the rehabilitation and behavioral response of the athlete to injury.
इस बिहेवियरल रिस्पॉन्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं? डज ही और डज ही नॉट एडहेयर टू रिहेबिलिटेशन? डज ही नो अबाउट पेन मैनेजमेंट? इज सोशल सपोर्ट अवेलेबल टू हिम? ये फैक्टर्स जो हैं ये रिहेबिलिटेशन और बिहेवियरल रिस्पॉन्स से रिलेटेड हैं, इंजरी से मुतल्लिक। इस रेफरेंस में हमने देखा कि क्या एक शख्स को साइकोलॉजिकल एक्सपर्टीज अवेलेबल है या नहीं है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ बीइंग इंजर्ड, नॉट बीइंग इंजर्ड एंड रिकवरी फ्रॉम इंजरी। फिर हमने ये भी देखा आखिर में कि क्या इंजरी के सिर्फ नुकसानात ही हैं या स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी के कोई फवायद भी हैं। हाँ, हमने ये बात खास तौर पे नोट की कि इंजरी के फवायद भी हैं। फवायद क्या क्या हैं उसमें? कि एक शख्स इंजर होने के बाद इंसाइट डेवलप कर लेता है कि उसको इंजरी क्यों होती है, कैसे होती है और उसको कैसे इंजरी से बचना चाहिए। उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, वो टफ माइंडेड हो जाता है, उसमें ज्यादा इनसाइट आने की वजह से उसकी सेल्फ वर्थ, उसकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ जाती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इन तमाम चीजों का असर है उसकी मोटिवेशन के साथ, वो पहले से ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और इस तरह से उसके लिए इंजरी जो है दैट अपीयर्स टू बी ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। Although, as I said earlier, there may be greater disadvantages to injury, but then to assume that injury only brings disadvantages is not correct. Injury can also bring some advantages. That is where we ended our lecture. Do take a look at these things. Until the next time, Khuda Hafiz and God be with you.